नमस्कार दगड़ियों। आई मीन हेलो फ्रेंड्स। पहला वाला मेरा गढ़वाली सैल्यूटेशन था। आज पहाड़ी कुछ ज़्यादा ही निकल रही है और इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि मैं अभी-अभी पहाड़ से 2 शादियां अटेंड करके आ रही हूँ। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपने देखे ही होंगे मेरी रील्स। और दूसरा रीजन ये है कि मेरे आज के गेस्ट, मेरे आज के मेहमान हैं फिर से एक बार मेरे पहाड़ी भुला, दैट इज माय पहाड़ी ब्रदर अजय जुगरान। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली इनकी याद होगी। ये तब आए थे जब इन्होंने अपनी कविताओं का संग्रह पब्लिश किया था और इस बार मैं उनसे मिल रही हूँ उनकी दूसरी पब्लिकेशन जो अभी रिसेंटली आउट हुई है, which is a collection of short stories. Known to me primarily as a lawyer throughout my life, Ajay has now donned the hat of a writer with full zeal. COVID break provided Ajay with an opportunity to unearth a passion that he had long buried, and that is writing. The result? Last year he published a collection of poems, and this year he unveils his latest creation, a book of short stories from the Garhwal region. Dedicated to the brave soldiers serving at the border, our quintessential Pahari Bhai or Bhula, this collection reflects his deep appreciation for their sacrifices. What sets this release apart is Ajay's switch to the English language, a departure from his previous Hindi publication. This shift showcases his mastery over both the languages, highlighting his versatility as a writer. Another thing that I admire in Ajay is his humility, which complements his brilliance in writing. Despite his noteworthy accomplishments, he remains extremely humble and grounded. He generously presents me his personally autographed book each time I meet him, which is such a precious gesture for me. Join us for a brief conversation on his new book, The Bridge on River Song and Other Stories from Garhwal. इस किताब का एम है पहला कि आपके 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो. Anyway, you're right. We began with the Antrang Satrang, the poetry collection, which was in 2021, which came out in 2021. You interviewed me in 2022. I promised you that I'll come back with a book. I'm so happy to be back with you. तो हुआ ऐसा कि जब हिंदी की कविता की किताब लिखी तो लोग कहने लगे हिंदी हम नहीं पढ़ पा रहे, बड़ी कठिन है, आप इंग्लिश में लिखिए. तो मैंने कहा चलो देखते हैं कितना दम है इनकी बातों में, तो अंग्रेजी में एक कलेक्शन लिखते हैं स्टोरीज का. सो दिस इज प्रीटी मच द बैकग्राउंड ऑफ माय बुक एंड इट कम्स फ्रॉम द फैमिली, comes from the neighborhood, the people that I met, saw, and the stories, folk stories have been retold in a new format so that stay in the memory of the hillsiders that are there. So pretty much it's a collection of stories from here and there that I've put together. How did this come about? So obviously it is a take on The Bridge on the River Kwai, which is a very, very famous book, and many have seen that film also. But indeed there is a river song which is there visible in Garhwal, in Dehradun, in near Haridwar, Rishikesh. So there was indeed a bridge on the river song, and that bridge served a double purpose, and I won't really get into too much of it. One was to exploit the resources in the hills, and the other, of course, was this people were able to travel up and down hills, which led to certain marriages taking place between hillsiders who would settle in the valley and people going up. Usually the brides were chosen from the hills because they were prettier and simple and more, I think, malleable within inverted commas, and that they had to be protected. So this bridge somehow contributed to a social reform,
So I picked that up and I just gave that title. अदर स्टोरीज फ्रॉम गढ़वाल, तो क्या गढ़वाल फोकस है तुम्हारी इन कहानियों का? So the book is dedicated to the Bhula, the quintessential soldier of the Garhwal Rifles, because the word Bhula is also very cute, you know. It's a very nice, polite word, and हम घर में छोटे भाई को, बड़े भाई हमको भुला बोलते हैं, तो प्यारा सा शब्द है और इसको सेलिब्रेट मैं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसको लिया। और मेरा लैंसडाउन में आना जाना बहुत था, तो मैंने उनको देखा, सोल्जर्स को, कैसे वो दूर दूर गांव से आते थे, आते हैं, और कैसे वो हफ्तों के अंदर ही कन्वर्ट हो जाते हैं, सोल्जर बन जाते हैं और अपनी जान देश को देने के लिए तैयार, तत्पर हो जाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो इसलिए मैंने उनको डेडिकेट किया। और स्टोरीज़ मेरी गढ़वाल से शुरू होती हैं, पर वो अल्मोड़ा भी जाती हैं, वो नैनीताल भी जाती हैं, वो वॉलोंग भी जाती हैं, वो और शहरों में भी जाती हैं। तो उसके किरदार, उसकी उसकी बैकग्राउंड गढ़वाल या देहरादून मुख्यतः रहती है, और उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इधर उधर जाते हैं और उनके काम इधर उधर होते हैं, लेकिन वो वापस लौट करके या तो वो पैदा वहाँ हुए हैं या उनकी कहानी के जो जिनका प्रभाव है वो उस क्षेत्र में है। तो इसलिए मैंने गढ़वाल को चुना। पर या गढ़वाल मेन कारण था भुला को सेलिब्रेट करना, सोल्जर को जो अपनी जान इस देश के लिए देने को तैयार रहता है और जिसको कोई जानता नहीं है, उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश है। तो अब ये बताइए कि पिछली वाली जो थी आपकी कविताएं थी और ये कहानी है, तो क्या एक ऑथर को ये पूछना फेयर होगा कि आपको कविताएं पसंद है या कहानी? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बता नहीं सकता आपको कि मुझे क्या अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा जो लोगों ने मुझे फीडबैक दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो पिछली कविताएं थी उनमें कुछ कविताओं में कहानी थी। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कहानी थी तो कहानी लिख के देखी जाए। तो एक कुछ ऐसा चल रहा था, एक एक दो लोग मांग रहे थे कहानियाँ, तो मैंने एक प्रयोग के तौर पर, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक हिंदी कहानी लिखी, उसको फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और उसको भेजा प्रकाशन के लिए। तो वो भाग्यवश वो जो प्रतियोगिता थी उसमें उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो मुझे लगा कि अच्छा, कहानी लिखी जा सकती है, और लोग वैसे भी कह रहे थे कि आपकी कविताओं में कहानियाँ हैं। तो आई सेड ओके, आई विल प्रीटी मच पिक इट अप एंड फ्रॉम देयर एंड राइट स्टोरीज ऑल्सो टू एड्रेस दैट कि हिंदी हमें समझ में नहीं आ रही, कठिनाई हो रही। तो मैंने कहा अंग्रेजी में लिख के आपको कहानियाँ देता हूँ। तो 23 कहानियाँ, तो अगेन अनफेयर क्वेश्चन टू द ऑथर कि इन 23 में से आपकी फेवरेट कौन सी है? ऐसी कोई अलग अलग तरह की कहानियाँ, जैसे मैंने कहा फौजी कहानियाँ हैं, तो फौजी कहानियों में मेरे को जो जिस कहानी के बारे में मैंने अभी आपसे बात की, फेयरलेस महिपाल, वो कहानी मुझे बहुत पसंद है। पर उतनी ही पसंद मुझे द स्मॉल रेडियो भी है। ये फौजी कहानियों में जो पर्सनल कहानियाँ हैं, जो पारिवारिक कहानियाँ हैं, उसमें पॉइंट सुधाजू एक कहानी है, वो मुझे बहुत पसंद है। और जो फोक है, सो उसमें द म्यूजिकल हिलॉक इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। मैं अजय को शुरू से ही एज अ लॉयर जानती थी और अभी अभी मैंने उनका ये राइटर वाला फेज देखा है, तो मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि क्या ये उनका लॉयर वाला बैकग्राउंड डज इट हेल्प हिम, इन्फ्लुएंस हिम, shapes his approach in his writing, or is it a hindrance? Are there any specific skills or qualities from his legal career that helps him in his writing? इस तरह के बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस थे उनसे। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं कि क्या उन्हें वकालत में ज़्यादा मज़ा आता है या लिखने में। सो जो 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 लीगल ट्रेनिंग है राइटिंग की, वो काफ़ी काम आती है लिखने में। सो पहली तो बात ये हुई, क्योंकि आप उसमें लिख रहे हैं, हो सकता है उसमें भावनाएं ना हो, है ना। अक्सरता जो वकील लिखता है उसमें इमोशन तो नहीं होता, तो बस इमोशन का पार्ट ऐड करना है ना। लेकिन ये भी होता है कि जो रूखे प्रोफेशंस हैं, जिनमें रस नहीं है, वो रस खोजते हैं कला में, संगीत में, है ना, शिल्प में, लिखने में, कविता में। तो शायद हो सकता है कि मैं भी वो कर रहा था।
और जब दुर्भाग्य से जब कोविड की स्थिति उत्पन्न हुई, उस समय एक विराम लगा काम पर और घर पे बैठना पड़ा। अब जो व्यक्ति रोज लोगों से मिले और रोज कुछ ना कुछ काम करे और रोज कुछ ये कहें कि बिना रस का पढ़े, है ना, लीगल, उसको घर पे आपने बैठा दिया तो उसको, उसके पास दो उपाय थे, या तो सब लोगों से लड़े घर में बैठ करके, या विक्षिप्त हो जाए, पागल हो जाए, या अपनी जो एनर्जी बची, जो मिली है उस समय पर, जो पॉज मिला है, उस पॉज को क्रिएटिवली यूज किए करे। तो मैंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से बांटा, और उन लोगों ने क्योंकि वो लोग भी उस समय उसी परिस्थिति में थे जिसमें मैं था, तो उन लोगों ने मुझे जो फीडबैक दिया, जो प्रोत्साहन दिया, उससे मुझे मिला, सहारा मिला कि हो सकता है कुछ किया जा सकता है। फिर उन्होंने ही मिलकर के वो कविता की किताब एक साथ तैयार करी और निकाली। इसी तरह से ये कहानियों की किताब है। ये सच है कि अब वकालत बैक सीट पर है और लिखना फ्रंट सीट पर है, तो वो चल रहा है। अलग अलग पारियां खेल रहे हैं, दूसरी पारी खेल रहे हैं। जब हम देखिए पहाड़ में जो भी है वो सब रस्किन बॉन्ड को जानते हैं, है ना। तो रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ अंग्रेजी में बहुत अच्छी लगती थी बचपन में। मुंशी प्रेमचंद, हामिद मुझे अभी भी रुलाता है, ईदगाह की जो कहानी है उनकी, मंटो की कहानियाँ झकझोरती हैं। इसी तरह से बहुत सारे और लिखने वाले हैं। शिवानी, एक टाइम पे हमने उनको पढ़ा, मोहन राकेश को पढ़ा, अपनी जो कवि जो दिनकर हैं उनको देखा, निराला हमें अच्छे लगते हैं, सुमित्रा नंदन पंत हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत से लोग हैं, तो कुछ लोगों का नाम लिया, जिनका नहीं लिया उनसे क्षमा। उन सबका प्रभाव कहीं ना कहीं है, सुनते सबकी हैं, जो पढ़ने को मिलता है वो पढ़ भी लेते हैं, करते अपनी मन की है। तो एक कहानी 1962 में सेट है। उसके हमारे पिताजी भारतीय सर्वेक्षण विभाग में थे, तो वो सर्वे करने के लिए नेफा, जो अब अरुणाचल प्रदेश, जहाँ आज भी चीनी मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो उधर उधर थे वालोंग में। और चीनी जो है वो उस दौरान उन्होंने अटैक किया इंडिया पर, और वो पहाड़ पर थे, वहाँ से सर्वेक्षण कर रहे थे बॉर्डर निर्धारित करने के लिए, और चीनी नीचे आए और उन्होंने गाँव वाँव जला करके चले गए। तो उस स्थिति में जब जान पर बनाई हो, हमारे पिताजी को याद आया कि वो ताजमहल तो बना नहीं सकते, और अब शायद जीवन का अंतिम क्षण हो, तो उन्होंने एक कोऑर्डिनेट, एक सर्वे पॉइंट का नाम सुधा जू पेपर्स में रखा। लेकिन स्थिति बिगड़ गई और वो कुछ समय तक ऊपर ही अटके रहे पहाड़ पर जहाँ से सर्वे कर रहे थे। तो अंत में यह निर्णय लिया गया कि जो पेपर थे वो जला करके नीचे उतरा जाए, देखा जाएगा। तो उन्होंने वो पेपर जला दिए और वो नीचे उतर गए, और भगवान की कृपा से वो जीवित लौट आए, लेकिन बहुत बुरी हालत में। और ये कहानी हमारे परिवार में चलती रही कि पिताजी, रोमांटिक मैन, एट दैट मोमेंट, द फाइनल मोमेंट, ऑलमोस्ट द फाइनल मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, he was naming a point in my mother's name. So I actually went to along, and I tried to visualize as to what my dad would have undergone. It's a tough place. It would have been tougher. Imagine in 1962, it would have been very, very tough. So that story is set in this manner, and as luck would have it, he came back alive, and they lived happily ever after. Any key message before we close today's episode? First of all, I appreciate the fact that you're doing this, because all creative people need support, and social media is critical, and not all of them are savvy. Uh, Actually, most of them are not savvy with at least our age is not savvy with the social media, so they need a little prompting. So thank you for that, and I thank. I haven't really won the Oscar, but
thank you to people who worked with me on this book. Malika Ramchandran, who was the editor, a number of illustrators who did a fabulous job, photographer Sanjay Nanwal, Amber Agnihotri, who did the cover, and many other illustrations inside. Wonderful work they did with me. I hope people like my book. I hope they buy it, and I hope in the process, by their buying and by making it a if not a profit thing, a not loss enterprise, then maybe that'll give me an incentive to write more and continue to write. Uh, I think the art of reading is also something important. People are not reading, and more and more people are using cell phones and screens to do short-term, audio or visual engagements. Reading is badly needed because it engages you completely. When you read, your eyes are into the book, your hands are holding the book, so, and I think there's a romance in the book, uh, which needs to be encouraged, and hopefully my book will do a little bit towards that. Thank you so much.